Okay, so next question. We'll start from 19th question today. A piston of a syringe pushes a liquid with a speed of 2 centimeter per second. The radius of the needle is 1/10 times that of the tube. The velocity of the liquid coming out of the needle is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बिकॉज डन मेनी टाइम्स. ये ट्यूब है सिरिंज का, then it goes to needle, something like this here, right? इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ. तो अभी आपको पता है what I'm trying to say is A1 यहाँ पे V1, ये A2 यहाँ पे V2. तो you already know कि आपको equation of continuity यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. तो A1 V1 equal to A2 V2 आएगा, and then V2 will be equal to, you are supposed to find out velocity coming out from needle. तो 2 मतलब needle है और A मतलब syringe है वहाँ पे. तो V2 is A1 by A2 टाइम्स ऑफ V1 और हमने पहले भी सॉल्व किया था ये. दैट इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखोगे तो R1 by R2 का स्क्वायर, क्योंकि A इज पाई R स्क्वायर टाइम्स ऑफ V1. अभी उन्होंने आपको गिवन में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द नीडल, दिस इज नीडल, ओके, is 1/10 times of the tube, this is tube. So R2 is R1 by 10 ऐसा बोला है, तो R1 by R2 is basically 10. So R1 by R2 is 10 square times of V1, and V1 is given to you as 2 centimeter per second. So that is 100 into 2, that is 200 centimeter per second. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है and you will get your required answer. That is option number C. Next question. Water from a tap emerges vertically with an initial speed of 1 meter per second. The cross-sectional area of the tap is 10 power minus 4 meters square. Assume that the pressure is constant throughout and the flow is steady. The cross-sectional area of stream 0.15 meter below the tap is. मतलब easy है. So we are talking about tap, मतलब नल में से जब पानी निकलेगा vertically, right? इसका इनिशियल स्पीड मैं इसको 0.1 बोल देता हूँ. इसका इनिशियल स्पीड आपको दिया है, हाँ, तो एरिया दिया है और स्पीड दिया है. यू ऑलरेडी नो दैट इज एरिया इज 10 पावर minus 4 meter square and they have given you speed that is 1 meter per second. प्रेशर कांस्टेंट बोला है उन्होंने, बोला है assume that the pressure is constant throughout and the flow is steady. The cross sectional area of the stream, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, पानी का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब डायमीटर, राइट, हियर एट सेकेंड पॉइंट 2 इज 0.15 मीटर. मतलब आपको रेडियस मिल सकता है यहाँ से, राइट, ओके. एनीवेज, तो आपको बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप. ओके, सो दे आर टेलिंग यू नॉट दिस थिंग, नॉट डायमीटर, सॉरी फॉर द करेक्शन. 0.15 meter below the tap, मतलब the distance between the stream and the tap is given to you as 0.15 meter. Basically A2 find करना है. in short you're supposed to find out A2, ज़्यादा कुछ नहीं है. A2 find करना है, cross sectional area of the stream find करना है आपको. कैसे करेंगे? दो चीज़ें हैं. एक, हमको A2 in terms of known parameters लाना पड़ेगा. known parameter क्या है? एक तो हमको हाइट दिया हुआ है वो, एक हमको A1 दिया हुआ है, एक हमको V1 दिया हुआ है. तो वी नो ऑल दिस और हम लोगों को A2 को इन टर्म्स ऑफ A1, V1 और H लाना है. तो कैसे करेंगे? एक तो आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो. बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके यू कैन गेट, क्योंकि क्या, व्हाट वाज बर्नौलीज इक्वेशन बाय द वे, इफ यू रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन वाज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस
रो जी y1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी y2। P1 P2 कैंसिल क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट बोला है, pressure is constant throughout. Then you will write it down like, so you will have to arrange and rearrange things. Okay, then you will solve it. बहुत easy है, it is quite simple, but I'll do it for you. So half rho v2 square minus half rho v1 square is equal to rho g y1 minus rho g y2, half rho common v2 square minus v1 square, rho g common y1 minus y2, cancel cancel, तो v2 square minus v1 square is 2 times of g और y1 minus y2 is height h, क्योंकि ये जो पॉइंट 1 लिया है इसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हाइट होगा दिस पॉइंट 1 का दैट विल बी y1 और इसका जो होगा दैट विल बी y2, तो y1 minus y2 विल गिव यू h, राइट। तो आपको मिल जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक आ गया ना। आगे कैसे करेंगे? आगे हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम हमेशा अप्लाई कर ही सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करोगे ऑल्सो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 आएगा, राइट। मतलब हमको बेसिकली v2 स्क्वायर हमारे पास है और अगर मैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2 अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू a1 बाई a2 टाइम्स ऑफ v1, राइट। सिंपल थिंग। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड पे, इफ आई स्क्वायर दिस, तो ये मुझे मिल जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर v1 स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि v2 स्क्वायर मुझे पता है, तो v2 स्क्वायर क्या आएगा v1 स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर। ओके, हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क ये था कि हमको a2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a1 v1 एंड h। तो ये वो इक्वेशन है जहाँ पे a1 v1 h और a2 यही सब चीज़ें दी हुई है, राइट। तो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस, और सिंप्लीफाई करना आसान है बहुत, इट इज़ क्वाइट सिंपल, तो यू विल गेट a2 स्क्वायर एज a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, सिर्फ मैं आई एम जस्ट शिफ्टिंग द टर्म्स हियर एंड देयर, नथिंग एल्स, राइट। तो मुझे a2 मिल जाएगा a1 v1 अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आई विल राइट डाउन द फाइनल आंसर हियर सब्स्टिट्यूटिंग, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। सो a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 10 पावर माइनस 4 है, v1 की वैल्यू 1 है, वापस से नीचे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो, और हाइट आपको दिया है 0.15, तो 10 पावर माइनस 4 अपॉन 10 इंटू 0.5 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, रूट 11। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, you have to solve this thing, and then after solving you should get it around 1 upon root 11, 1 upon root 11 is 3 point something, 1 by 3, 1 by 3 is 0.33 something। तो you have to simplify, ये आपको फाइनली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज you can't have a proper answer। तो ये according to me it should be 5 into 10 power minus 5 meter square roughly। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि हमने किया क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डेफिनेटली बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बाय द वे आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते थे यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो आपको मैंने जो बताया टैब है,
वर्टिकल टैब है, उसमें से पानी बाहर आ रहा है, पानी का नीचे एक स्ट्रीम है, राइट। 0.15 मीटर हाइट पे स्ट्रीम जो है पानी का, क्योंकि नल से जब पानी आएगा तो नल से निकल के ग्राउंड तक जाएगा, तो नल से 0.15 मीटर के बाद जब पानी नीचे जा रहा है 0.15 मीटर के बाद, राइट, पानी का स्ट्रीम है ना, तो नल से जो पानी निकलेगा बेसिकली, तो वो अलग अलग डिस्टेंस पे उसका स्ट्रीम अलग अलग हो सकता है ना, तो पानी फैलता भी है ना। व्हेन यू ओपन द टैप यू विल सी कि इट एक्चुअली इंक्रीजेस इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 0.15 मीटर के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा ये पूछा है आपको। तो अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा लंबा जाएगा, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस 2a मतलब g और s मतलब h। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से आ सकते थे। तो जो मैंने ऊपर का पार्ट किया है ये आपको सिर्फ मैंने ये बताने के लिए किया है कि यही चीज़ बर्नौलीज इक्वेशन से आ सकती है, बट इट इज़ अ लेंथी टास्क। तो हम लोग डायरेक्टली आप लोग डायरेक्टली v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh से स्टार्ट करना, फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ किया तो v2 इक्वल टू a1 बाई a2 टाइम्स v1 आ गया, तो जस्ट स्क्वायर किया है मैंने। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब मैंने इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई करते गए हमको a2 का इक्वेशन मिला और देन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज एंड कैलकुलेटेड इट। तो सिंपल क्वेश्चन था, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A sphere falls from top and travels through some distance in liquid when it attains terminal velocity. Then F2 is total weight of the sphere. If F2 is total weight of the sphere, then F1 is the upward force of viscosity. If F2 is net weight of body, then F1 is upward thrust and D is none. ये क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरेटिकल है। देखो क्या है, स्फीयर फॉल्स फ्रॉम टॉप एंड ट्रेवल्स थ्रू सम लिक्विड। आपको याद होगा जब हमने टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला था, याद होगा आपको, टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने में मैंने बोला था कि F2 ये होता है वेट और F1 जो होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे, दैट F1 हमने दो फोर्सेस लिए थे, एक अपवर्ड फोर्स था अपथ्रस्ट, दूसरा विस्कोसिटी का फोर्स था। तो F2 टोटल वेट होता है और F1 जो है टोटल अपवर्ड फोर्स होता है, राइट, विस्कोसिटी का। यहाँ पे अपथ्रस्ट के बारे में बात ही नहीं की है, तो हियर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अपथ्रस्ट। सो इफ F2 इज नेट वेट F2 इज नॉट नेट वेट। मैं वापस समझा रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था तो मैंने बताया था कि दो फोर्सेस अपवर्ड होते हैं। कौन से दो फोर्सेस अपवर्ड होते हैं? एक होता है आपका अपथ्रस्ट, एक होता है आपका विस्कोसिटी का फोर्स, राइट। ओके, इस डायग्राम में आपको बताया गया है एक फोर्स डाउनवर्ड्स और एक फोर्स अपवर्ड्स, राइट। अब एक बताया है तो कंफ्यूजन क्या रहेगा कि अपथ्रस्ट है या विस्कोसिटी का फोर्स है, राइट। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, जब हम लोग लिखते हैं F2, we are talking about total weight of the sphere. So F2 is total weight and not net weight. नेट तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा ना। अब नेट क्या होता है? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, राइट। तो ये नेट तो नहीं हो सकता है, टोटल फोर्स हो सकता है, तो बेसिकली टोटल वेट हो सकता है, तो सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। F2 is total weight of the sphere, yes. And F1 is upward force, yes. F1 is upward force of viscosity. तो ऑप्शन नंबर ए नहीं लिख सकते हम लोग। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनकम्प्लीट है, F1 के बारे में बात ही नहीं की है, राइट। तो यू विल हैव टू टिक and say F2 is total weight of the sphere and F1 is upward force of viscosity. तो oral question था, that is option number B. So you don't have to write it, it is just oral question.
22. Two syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. The diameter of the smaller piston and the larger piston, ये हमने सॉल्व किया है. This question was in last set if I'm not wrong. 90 न्यूटन का आंसर आता है. आपको सिर्फ यहाँ पे पास्कल्स लॉ अप्लाई करना होता है. चलो वापस कर देते हैं, डजंट मैटर. हमारे पास दो सिरिंज है, दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. तो ये एक सिरिंज हो गया, ये दूसरा सिरिंज हो गया, राइट. विदाउट नीडल, नीडल नहीं है इसमें, दोनों में नीडल्स नहीं है. समथिंग लाइक दिस. They are filled with water and connected with tightly fitted rubber tube. तो आपने इसको रबर ट्यूब से कनेक्ट कर दिया. They are filled with water, right? ऐसा है कि स्मॉलर पिस्टन का जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है. ओके, इसको मैं बोलता हूँ 1. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, फोर्स 1. यहाँ पे इसको बोलता हूँ 2. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 और फोर्स F2. इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन, मतलब F1 की वैल्यू आपको दी है 10 न्यूटन, तो लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा. यूजिंग पास्कल्स लॉ आपको पता है, यूजिंग पास्कल्स लॉ द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, मतलब प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 होता है. ये हमने थ्योरी में सीखा है. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. हमको F2 फाइंड करना है. F2 इज A2 बाई A1 टाइम्स ऑफ F1 एंड A2 बाई A1 इज रिलेटेड टू डायमीटर एंड रेडियस बेसिकली. तो ये आएगा D2 बाई D1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ F1. दोनों सेंटीमीटर में तो आई विल नॉट कन्वर्ट. 3 बाई 1 का स्क्वायर टाइम्स F1. F1 is 10. So 9 into 10, that is 90 Newton. So total force is 90 Newton F2 force. Easy question था, you just have to apply Pascal's law. और ये हमारा पहले भी हुआ है ऐसा टाइप का क्वेश्चन. Okay, let's move to next question now. 23rd. Again, it is very simple question. An ideal fluid flows through a pipe of cross section made of two sections with diameter 2.5 and 3.75. The ratio of velocities. ये भी हमारा हुआ है क्वेश्चन, बट आई स्टिल रिपीट इट. कुछ नहीं है, एक पाइप है जिसके दो क्रॉस सेक्शंस है अलग अलग, राइट. तो इट इज द पाइप इज नॉट यूनिफॉर्म, इट जस्ट लाइक अ सिरिंज, राइट. इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. आपको पूछा रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन टू पाइप. यू नो, आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है. रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आपको पूछा है, मतलब V1 बाई V2 पूछा है. तो V1 बाई V2 is A2 by A1, that is equal to, and you have been given diameters, so that is D2 by D1 का square, simple. तो 3.75 upon 2.5 का square, that is simple thing. This is, I mean, you should know this, 2s and 3s. Okay, तो 9/4 आंसर आएगा. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था और ऑलरेडी हमारा ये हुआ भी है, so it's pretty simple. All right. 24th. A drop of water of radius 0.0015 mm is falling in air. If the coefficient of viscosity of air is 200 10 power minus 5 km, it is cannot be km, it should be kilogram, something like that, per meter, and whatever value it is given to you. The terminal velocity of the drop will be. तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोगों को सिंपल सा चीज़ है, ये भी हुआ है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज 2/9, याद होगा, R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपॉन ईटा. मैंने आपको ये भी बताया था व्हेन आई टुक दिस क्वेश्चन कि सिग्मा नहीं लिखा तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि ड्रॉप ऑफ वाटर, ये रो होता है वाटर ऑब्जेक्ट का जो फॉल हो रहा है, और ये होता है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम.
जिस मीडियम से फॉल हो रहा है। तो वाटर का डेंसिटी 1000 और एयर का डेंसिटी 1, तो सिग्मा इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपेयर टू रो। तो मैंने आपको बताया था कि वी विल नॉट राइट सिग्मा बट वी विल जस्ट राइट दिस, एंड हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2/9। आर की वैल्यू आपको दी है 0.0015 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर लोगे 15 × 10⁻⁻7 मीटर होगा, क्योंकि 0.0015 मतलब 10⁻⁻4 तो ऑलरेडी आ गया, 15 × 10⁻⁴ फिर mm को और मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये ऐसा आएगा, और g की वैल्यू भी 10 आएगी, तो इंटू 10 अलग से होगा अपॉन, और रो की वैल्यू भी आएगी, रो इज 10⁻³ लिक्विड का, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ बेटर 10⁻³ और लास्ट में वो 10, और ईटा की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁻⁻5। तो ये आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द फाइनल आंसर दैट यू शुड गेट इज दिस 2.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट्स प्रीटी सिंपल थिंग। सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। Okay, next question. The radii of two columns in YouTube are R1 and R2 when a liquid of density rho, angle of contact 0, मतलब प्योर वाटर की बात चल रही है यहाँ पे, is filled in it. The level difference of the liquid in two arms is H. The surface tension is given by. तो ऐसा है कि हमारे पास YouTube है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, एक का रेडियस ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे का, समथिंग लाइक दिस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। ओके, तो एक में हाइट कम होगा, दूसरे में हाइट ज़्यादा होगा। ओके, राइट। तो जो डिफरेंस है इसको हमने बोला है एच, एच बोला है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यस, राइट। ओके, तो आपको पूछा कि सरफेस टेंशन क्या होगा, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं एक को H1 मान लेते हैं, दूसरे को H2 मान लेते हैं, मतलब फिर आपको H मिल गया, H1 माइनस H2, देयरफॉर H1 माइनस H2 इज H। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है जनरल फॉर्मूला फॉर हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब, याद होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये हमने थ्योरी में सीखा है। हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g, तो H1 मिल जाएगा 2t cos 0 अपॉन R1 रो g, तो H1 इज इक्वल टू 2t cos 0 इज 1 R1 रो g, और H2 मिल जाएगा सिमिलरली 2t अपॉन R2 रो g। ओके, राइट। तो अभी मैं H1 माइनस H2 कर लूँगा, देयरफॉर H1 माइनस H2 कर लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो H1 माइनस H2 क्या आएगा आपका 2t R1 रो g माइनस 2t R2 रो g। तो H1 minus H2 is simply H, which is the difference in the level in the two arms. 2t upon rho g you can take out common, 1 upon R1 minus 1 upon R2. So H is equal to 2t by rho g cross multiply R2 minus R1 upon R1 into R2। हमें बहुत है सरफेस टेंशन, तो T इज इक्वल टू, सिर्फ बाकी सब चीज़ें शिफ्ट करनी होगी मुझे, H रो G R1 R2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1। तो ऐसा कोई है क्या, H रो G R1 R2 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1? आई कैन सी दिस इन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ,
हमको सिर्फ हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब का इक्वेशन पता होना चाहिए था। फिर पहले 1 आर्म में हाइट h1 है, दूसरे में h2 है, और h1 माइनस h2 जो है वो h है, क्योंकि लेवल डिफरेंस आपको बोला है, द लेवल डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन टू कॉलम्स इज h। तो मैंने h1 निकाल लिया फॉर वन कॉलम, h2 निकाल लिया फॉर अदर कॉलम। दोनों में लिक्विड सेम है तो दोनों में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, तो आपको h1 और h2 मिल गया। बस आप ये h1 और h2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, you have to subtract basically। तो h1 minus h2 is 2t upon r1 rho g minus 2t upon r2 rho g, h1 minus h2 is h, and then simplifying you get the answer for surface tension।